My dear all, through this video we will know about the chapter of a class. Chapter name is The Proposal. यह आपका प्ले है प्रपोजल और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। बल्कि ये जो कॉमेडी प्ले जिसमें कॉमेडी से बने हुए हैं और जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर बहुत ही मजेदार है। जब आप उसे पूरा का पूरा वीडियो देखोगे तब आपको ये समझ पाओगे कि किस तरह से यहाँ कॉमेडियन को लाया गया और किस तरह से कैरेक्टर्स में ये भी बताया गया कि जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो किस तरह से डिफरेंट है। और सबसे मजेदार बात ये है कि एक लड़की को पाने के लिए, एक गर्ल को पाने के लिए किस तरह से एक बॉय अलग तरीका से प्रपोज करता है। इसीलिए इस प्ले का नाम आपका रखा गया प्रपोजल, यानी प्रपोज करने का तरीका क्या है। And you have to know about learning outcomes because I will talk about proposal. There are two. One is a girl, and another one is a boy, and one is girl's father. Right. So first we have to know about what is learning outcomes in this chapter. Now, first is to understand customs and traditions of different cultures. Okay. Then to learn about marriage ceremonies of different cultures and compare it with Indian setup. And next is to think of customs similar to Indian ones and those that are different. And next one is the moral of the story is to learn to forgive and forget. Uh, so first you have to see here some pictures are there and some sweets and some different picture whatever you are watching in wedding time, and this is in inviting letters, different types of sweets and some pictures here, and girls, boys and other also. Now, so in wedding what you're getting here is one boy and one girl. So now, if I'm talking about weddings amid Corona, then you have watched TV and news also. Many times, what is going, what is getting in the society? Expenses cut down, right? Expenses cut down. That means somewhere where thousand and more than thousand people were involved in party. Now it's very less. Okay. So as weddings go online amid lockdown, startups and even bigger firms are exploring virtual wedding space also. Okay. Now marriages go virtual during pandemic, and you have seen many more also. Now I will talk about the chapter. First, this picture is of Anton Chekhov, right? And you have to know about him, Russian playwright and short story writer. And next is about him, greatest writer of short fiction in history, greatest writer. And if I'm talking about this chapter, the proposal, then here is his father, Pavel Chekhov, and ran a grocery store while his mother, Evgenia Morozova, was an excellent storyteller who entertained the children with tales of her travels. And our talents we got from our father, Chekhov, I remember, but our soul from our mother. Now, the proposal. This is your chapter, your form phase. आपने ये देखा कि आपके जो चैप्टर है प्रपोजल, इसमें जो एपिक आपने जरूर देखा होगा कि आपके टेक्स्ट बुक में, and it is written by Anton Chekhov. Okay, so I will talk now about characters. It's very easy to understand the chapter. इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान है। यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि स्टेफेनोविच चुबोकोव, ओके, ये कौन है। आई हैव टोल्ड यू क्लियरली कि इसमें एक बॉय है और एक गर्ल है, और गर्ल का पापा, फादर भी है। देन ये जो आपके सामने है, इनका जो नेम देख रहे हो, यह है आपका a landowner and the father of Natalia. That means it is very clear, इनकी जो डॉटर है, बेटी जो है, वो नटालिया है। ओके, सो now it is in front of you. Note picture same. पिक्चर ऐसा मत मानना आपकी यही पिक्चर है,
Okay, so Natalia is a young girl and fishy and argumentative. Now I'm talking about a boy जिसे प्रपोज करना है तब तो होगी। एक कहावत है, बिना गर्ल और बिना बॉय का हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं होगी। तो आइए अब जानते हैं ये कौन बॉय है जो इनको प्रपोज करना चाहते हैं। इवान वेसिलेविच लोमोव, he is a young man and wishes to marry Natalia. ये चाहता है कि नटालिया से उसकी शादी हो जाए और वही प्रपोज करना चाहता है। वेरी आर्गुमेंटेटिव। ओके, नो आपके सामने क्लियर पिक्चर आ गया होगा कि जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो उसमें एक गर्ल का पापा है, फादर है, नटालिया का पापा है चुबोको, एंड एक बॉय है जो गर्ल को प्रपोज करना चाहता है एंड वो है लोमोव। ओके, तो लोमोव नटालिया से शादी करना चाहता है और इसी के लिए प्रपोज करने उनके घर आता है, बहुत ही बन ठन के, दैट मीन्स इन वेरी गुड ड्रेस, बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग करके आता है। राइट, चलिए अब जानते हैं। नाउ हैव टू नो अबाउट द लेसन एट अ ग्लांस। Okay, it's very easy. Now first, Ivan Lomov, a wealthy neighbor of Stefan Chubukov, comes to his house to seek Natalia, daughter of Chubukov, hand in marriage. यानी वह नटालिया को उनके घर जाता है, नटालिया के घर, इनके पापा से उनके बेटी का हाथ मांगने, hand in marriage. Right? Second point is, all the three turns ought to be argumentative and argue over petty issue. छोटी छोटी इशू होते रहते हैं जिस पर आर्गुमेंट भी होते रहता है। चलिए कुछ पॉइंट को जानेंगे, आगे जानेंगे। द प्रपोजल वाज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग बट नटालिया टर्न्स द बॉल इन हर कोर्ट्स। द स्टोरी एंड्स विद नटालिया विद लोमोव बाय हिज साइड। लास्ट में तो स्टोरी खत्म होती है, इन भी हो जाती है, लेकिन लोमोव को क्या नटालिया मिलता है कि नहीं, उनके हैंड में मिलता है कि नहीं, उनके साइड में मिलता है कि नहीं, चलिए जानेंगे आगे, नेक्स्ट जानेंगे। नाउ storyline. Here is Lomov wearing a former dress enters in the mansion of Chubukov. यानी चुबोकोव यहाँ लोमोव आता है। क्यों आता है? Is there any reason? Yes, reason of visit to marry Chubukov daughter Natalia. Actually चुबोकोव की जो बेटी नटालिया है उनसे शादी करना चाहता है, इसीलिए उसके घर आता है। राइट, ये आपका तो पूरे क्लियर हो गया। नौ क्या होता है, अब क्या होता है? When Natalia faces Lomov, जब नटालिया को लोमोव सामने सामने आ जाते हैं, he struggles to tell her the purpose of his visit. अब वो बताना चाहते हैं कि आखिर विजिट यहाँ आने का कारण क्या है। I told you clearly कि नटालिया के पापा से क्यों मिलने जाता है, क्योंकि वो नटालिया का हाथ मांगना चाहता है, दैट मीन्स उससे शादी करना चाहता है। बट नाउ हियर जैसे ही नटालिया का फेस यानी नटालिया का आमना सामना लोमोव से होता है, देन वो बताने लगता है कि पर्पस ऑफ हिज विजिट। क्या बताता है? Soon an argument ensues between them on Oxen Meadow. अब ऑक्सन मीडो क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, वो एक्चुअली यहाँ पर बताता है कि आर्गुमेंट करने लगता है ऑक्सन मीडो के ऊपर में, यानी नटालिया के ऊपर, कि यहाँ आने का जो पर्पस होगा वो मेरा ऑक्सन मीडो। नाउ यू हैव टू नो अबाउट ऑक्सन मीडो है क्या। एक्चुअली इट इज अ ग्रासलैंड, दैट मींस यू कैन से ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल टू ग्रेस, जहां पर जानवर चरते हैं, घास खाते हैं। राइट, इट इज ऑक्सन मीडो। नो, ये भी आपको मालूम हो गया कि ऑक्सन मीडो क्या है, ये भी आपको मालूम हो गया कि लोमोव जो आया था वो नटालिया के घर और अब आर्गुमेंट कर रहे हैं नटालिया के साथ ऑक्सन मीडो को लेकर के। नाउ चुबोकोव, नटालिया एंड लोमोव, ये तीनों के तीनों ऑक्सन मीडो के ऊपर आपस में क्या बोलूं उसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या तो बात तो कुछ और है, निशाना कहीं और है, लेकिन तीर तो कुछ और निकालना चाहते हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली, नटालिया एंड लोमोव आर्ग्यू ओवर द प्रॉपर्टी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी, व्हिच प्रॉपर्टी? ऑक्सन मीडो के बारे में मैं बता रहा हूं। राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर यू। चुबोकोव इंटर्स एंड कंफर्म्स नटालिया's स्टेटमेंट एंड they were the owners of ऑक्सन मीडो। चुबोकोव ये बताता है और कंफर्म भी करता है नटालिया को बातों को लेकर के, इसका मालिक जो है वो चुबोकोव है, यानी नटालिया का पापा है। उनका पापा कहते हैं इनका मालिक मैं हूं। अब क्या होता है? दे थ्रो लोमोव आउट ऑफ द हाउस, वो उनको घर से निकाल देता है, बोलता है जाइए, एक्चुअली आप यहाँ आए हो
मेरी बेटी को बोलने के लिए कि प्रॉपर्टी के लिए, ऑक्शन वीडियो के लिए. So it's not, you are not correct and you are going somewhere wrong. So you have to go out. और उसे क्या करते हैं, आउट ऑफ हाउस कर देते हैं. नाउ इट्स वेरी सिंपल. यदि कोई आता है चाहने के लिए और उसमें बीच में कुछ दरार आ जाए तो क्या होता होगा आप समझ सकते हो. Zhukov then tells Natalia and purpose of his visits. It's very clear here. Zhukov then tells Natalia the purpose of not purpose of his visit and the reason for his former decision. Clear? Now I'm talking about, hearing to this, Natalia becomes hysterical and asks her father to return him back. अब नटालिया के ये हो जाता है कहीं ना कहीं लुमोव का ही वो प्रॉपर्टी होगा, इसलिए मेरे पापा से मांगने आया है, ऐसा नटालिया को लगता है. So Natalia becomes very clear and he told clearly her father to return him back. उन्हें रिटर्न कर देने के लिए. क्या वो रिटर्न करेगा? क्या वो लुमोव का था? आपको मालूम हो चुका होगा वो लुमोव का था या नहीं था, या तो कुछ बात बनाने के लिए यहाँ पर आया है. Luma struggles because of his palpitation and tells Natalia that land is not important. Yes, it is very clear here that Lumov कुछ और बातें करना चाहता है and वो बताना कुछ और भी चाहता है. Now Natalia then feels sorry and admits that auction widows are Lumov properties. Yes, now Natalia feels, admit and इस बातों को स्वीकार भी कर लेते that auction widows are Lumov's property, right? सेकेंड रीजन फॉर फाइट्स. एक तो यहां पर नटालिया को यह बताना चाहा यहां जो लुमोव आया वह ऑक्शन मेडो कारण आया. बट व्हाट इज सेकेंड रीजन? ओके, सम डिफरेंट. सेकेंड रीजन इज हियर फॉर फाइट. दिस टाइम दे आर्ग्यूड ऑन देयर डॉग्स. अब यहां पर दूसरा आर्गुमेंट होने लगता है उनके डॉग्स को लेकर के. लुमोव्स गेस और नटालियास एक्सक्यूजर, राइट? Finally, Lumov's condition deteriorated and he falls on the chair. Lumov गिर जाता है. ऐसा लगता है कि उनको चक्कर आ गया, लेकिन चक्कर नहीं आता. वो सिंपैथी सब कुछ लेना चाहता है नटालिया का और उनके पापा का, इसलिए वो ऐसा शो करता है. ओके, so he falls on the chair. Both daughter and father considers him dead, but he soon comes to his senses. Yes, I have told clearly that ये जो था उनका एक दिखावा था, एक्चुअली उनको कुछ हुआ नहीं था. बट दोनों का दोनों, बेटी और पापा, डॉटर एंड फादर, दोनों का ऐसा लगा कि अब लुमोव ने जो इस बातों को लेकर के बार बार जो उनको झटका लग रहा है, इनको लेकर के अब वो डेड हो गया. दैट मीन्स अब वो नहीं रहे. बट जैसे ही कुछ सुनता है वैसे ही उसका सेंस काम करने लगता है. दैट मीन्स वो एक्टिव हो जाता है, लाइव हो जाता है और वो होश में आ जाता है. बट वो क्या सुनता है? The play ends on a positive notes. उनको कुछ पॉजिटिव नोट मिलता है. दैट मीन्स वह कोई पॉजिटिव बातों को समझ सुनता है. और क्या पॉजिटिव सुनता होगा? इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो मकसद से वो आया था और किस पर्पज से आया था, उनका पर्पज ये था वो प्रपोज करने आया था. किसको प्रपोज करने आया था? नटालिया को. और यदि नटालिया को प्रपोज करने आया यहाँ और नटालिया से मिल जाता है तो क्या वो बिल्कुल कहते हैं ना, मांगे यदि पूरी हो जाए तो बिल्कुल वो कैसा होगा? वही हुआ लुमोव के साथ. लुमोव जिस पर्पज से आया था प्रपोज करने के लिए, मुझे चाहिए था नटालिया का हाथ चाहिए था, नटालिया शादी करना चाहता था. और जैसे ही वो बेहोश हुआ और उन्हें कुछ खबर मिली, उन्होंने जब अपने कानों से सुना कि हाँ उनकी मांगे पूरी हो गई है, बिल्कुल लुमोव होश में आ गया. ओके, नाउ थीम ऑफ दिस प्ले, ये जो द प्रपोजल, ये जो आपका प्ले है, इसका थीम क्या है? कुछ ना कुछ तो होगा, जरूर होगा. नाउ यू हैव टू नो इट ब्रिंग्स फॉर्थ द कल्चर ऑफ 19th century Russia, okay, where the hierarchical position and status of a person depended completely on how much property he possessed. होता था पहले जिनका जो प्रॉपर्टी रहता था उनको लोग ज्यादा फेवर में रहते थे, राइट? And other thing that is very important, ownership of land plays the most important role and takes precedence over love and romance. Okay, that means important role
Most important role, ownership of land. Ownership of land plays the most important role. कि जिनका लैंड दिखाएंगे, ज्यादा दिखाएंगे, वो क्या होगा, उनकी तरफ उनकी शादी जल्दी हो जाएगी, और ये बात भी कह सकते हैं उन्हें लड़की जल्दी मिल जाएगी। आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्ले शोज दैट हाउ ह्यूमन वेनिटी डिस्ट्रॉयज ह्यूमन रिलेशनशिप। एक तरफ ये भी दिखाता है ये प्ले कि किस तरह से इंसानों में इंसानियत नाम की चीज खत्म हो गई। दैट मीन्स वो भावनाओं को ना समझता है, इंटेंशन को नहीं समझता है, वो ये समझता है कि आखिर कितनी प्रॉपर्टी किन से बिलोंग करता है, कितनी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, तो वो फाइनलाइज करता है वो अपने रिलेशन को, अपने लाइफ को। ओके, इस तरह से यही थीम था आपके प्ले का, द प्रपोजल का। नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर नोटबुक। सो फर्स्ट इज, हाउ डज Lomov come to Chivakov's house? What for does he come? How is he research? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के बाद आपको इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट नॉलेज आ जाएगी एंड यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली अबाउट दिस चैप्टर एंड व्हेनेवर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू राइट आंसर। ओके, देयर आर टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज Natalia ask her father Chivakov to fetch Lomov in at once when they have fought verbally? How does she accuse her father? चलिए क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, Lomov comes to Chivakov's house in the evening dressed with gloves on. Clear? He comes to propose to his daughter Natalia. He is received with all the respect by Chivakov. Clear? It is clear by Chivakov's word like my answer, my dear fellow, my treasure, सब कुछ उसी का था। ओके, यानी उनकी डॉटर, उनका सब कुछ है। नाउ नेक्स्ट इज आंसर इज second question I have told clearly. Now answer is, actually Chivakov says that Lomov came to propose to Natalia for marriage. It's very clear. And next point is, Natalia did not know it, so she at once changes and asks her father to face Lomov in them. She also excuses Chivakov that he drove Lomov out. Right? Now, this question is, third number question is, how is the proposal ग्रेट कॉमेडी? और ग्रेट कॉमेडी, यस, जिस तरह से आपको लगा होगा तो आपको भी मजा आया होगा आई थिंक। अब आपको बताना पड़ेगा कि ये जो प्रपोजल, द प्रपोजल, ये जो आपका प्ले है वो किस तरह से बहुत बड़ी कॉमेडी भी है, मजेदार भी है। नाउ हैव टू नो द प्रपोजल इज अ ग्रेट कॉमेडी। इट इज बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स एंड सब्जेक्ट मैटर एंड हाउ दे बिहेव। उन्होंने किस तरह से बिहेव किया, और कैरेक्टर जो था वो भी बहुत मजेदार है, एंड सब्जेक्ट मैटर, किस बातों पे वहां पर उन लोगों के पास झगड़े हुई, झगड़ा नहीं कहने से यानी डिस्कशन हुई, मैटर क्या था, और किस तरह से एक दूसरे को नाटक में इस तरह से हुआ कि वो बेहोश भी हो गया, और जब ऐसे अपने नटालिया के हाथों से मिल गया वो खुश भी हो गया और जिंदा हो गया। नटालिया, लोमोव एंड Chivakov फाइट ओवर पुलिस थिंग। यस, आई हैव टोल्ड क्लियरली कि तीनों कैरेक्टर जो है, तीनों कैरेक्टर्स में किस तरह था। ऑल दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ लाफ्टर। The verbal fights over auction meadows and dogs are really full of humor. यानी डॉग के ऊपर एंड ऑक्सन मीडो के ऊपर जो फाइट कर रहे थे उन लोग वर्बली, वो बहुत ही मजेदार रहा। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज, व्हाई डिड Lomov वांट्स टू गेट मैरिड? ऐसा क्यों चाहता Lomov शादी कर लो? Lomov was 35 years old. It was high time that he should settle for a quick and regular life. वो चाहता था कि आप जिंदगी को आगे की शुरुआत करो, आगे बढ़ाओ, क्योंकि उनकी एज जो है 35 इयर्स ओल्ड हो चुकी थी। Moreover, he was suffering due to a weak heart and sleep sickness. It's very simple. He wanted company and someone to look after him, so he wanted to get married. शादी करने का पर्पस भी वही होता है कि आगे का जिंदगी जिए और कोई ना कोई साथ देने वाला मिल जाए जिससे सफर आगे बढ़ता रहे। ओके, सो माय डियर ऑल, आई हैव टोल्ड यू क्लियरली एंड होप कि आप जब इसे पूरे के पूरे वीडियो देखोगे तो मजा भी आएगा। इस तरह के वीडियो आपको मिलते भी रहेंगे। सो माय डियर ऑल, आई विल से क्लियरली, इफ यू वांट टू गेट notification, then please subscribe my channel, and you all have to watch my video, and you can share my channel also to your colleague, to your friends, so that they can get my video. Thank you so much.